وہ نکلے پھر 430 برس کے بعد مصر کی غلامی میں سے. تو خدا کلام میں سے کل بھی ہم پڑھ رہے تھے. پھر خداون اپنے بندوں کو بحر کلزم میں سے بھی نکالا اور پھر خداون نے جو چاہا کہ اپنے بندوں کو شریعت دے. یہ 10 حکم ہی تھے جو سب سے پہلے خداون دیے تھے. اور خداون نے موسیٰ کو کیا کہا تھا؟ آجا پہاڑ پہ وہیں ٹھہرا رہ. پتھر کی لوہیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے. کن کو؟ اسرائیل کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو جن کو آزاد کیا گیا. اور موسیٰ اور اس کا خادم. ابھی ایک خوبصورت بات ابھی میں آپ کے سامنے بولوں گا. یہ بھی میرے ذہن میں جو بات آئی میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کا خادم یشوع، موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے اور موسیٰ خدا کے پہاڑ پر اوپر گیا. اور بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ بزرگوں سے کہہ گیا تھا، سنیے ذرا غور سے، بزرگوں سے کہہ گیا تھا جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں تم ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہو. موسیٰ اوپر کوہ سینا پہ چلا جاتا ہے اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی. خدا کا جلال کوہ سینا پر آ ٹھہرا اور 6 دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی. اور 7ویں دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا. 6 دن موسیٰ اس گھٹا کے بیچ میں رہا. 7ویں دن پھر خدا کہتا آجا. اس کا مطلب ہے خدا اس سے پہلے بولے، اپنے کلام کی آواز، اپنی شریعت کی آواز بولے. موسیٰ کو کچھ وقت گزارنا پڑا، اس جگہ کے اوپر ٹھہرنا پڑا، انتظار کرنا پڑا. اور خدا نے پھر 7ویں دن موسیٰ کو بلایا. موسیٰ کو بلاتا ہے خداوند. اور بائبل کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کا جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا. میں پڑھ رہا ہوں 24ویں باب میں، خروج کی کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں اور 18ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں. اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا. یہ موسیٰ کا روزہ تھا. موسیٰ کا روزہ کیوں ٹھہرا؟ کچھ لینے کے لیے. خداوند نے کیوں 40 دن 40 رات کے بعد اسے دیا؟ خدا اپنا کلام اسے دینا چاہتا تھا. اور آج ہم کس طرح، کس لگن کے ساتھ، کس قدر خدا کے ذمہ ٹھہر کے خدا کلام لینا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ موسیٰ 40 دن 40 رات وہاں پہ رہا اور پھر خداوند سے بولتا ہے. خداوند سب سے پہلے بولتا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ مقدس بنانا ہے. کیوں مقدس بنانا ہے؟ تاکہ میں تمہارے درمیان میں سکونت کروں. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بولا تھا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ اکٹھے میں ان کے بیچ میں ہوں. ہاللیلویا. اور پھر خدا کلام میں سے ہم اگلے حصے میں پڑھتے ہیں کہ خدا موسیٰ سے بولے جا رہا ہے، کلام کی باتیں بتائے جا رہا ہے. اور 31ویں باب میں سے کل بھی پڑھا تھا 18ویں آیت کے اندر، جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوہیں دیں جن کے لیے موسیٰ کو پہلے بتایا جا چکا تھا. 40 دن 40 رات موسیٰ ٹھہرنے کے بعد، اور میں پھر بولوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ نہ تو وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا سویا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نیچے بیٹھ گیا ہو. نو، خدا کھڑا باتیں کر رہا تھا، موسیٰ سن رہا تھا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور جب وہ خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوہیں دیں. اور وہ لوہیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں. 32واں باب پہلی آیت خروج کی کتاب. اور جب لوگوں نے دیکھا، یہاں سے اگلا سین شروع ہوتا ہے. جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اسے کہنے لگے، اٹھ ہماری دیوتا بنا. زندہ خدا جو اترا اپنے بندوں کے لیے تاکہ یہ میری عبادت کرے. موسیٰ اوپر گیا ہے
कलाम लेने के लिए। खुदा कलाम दे रहा है उनको बताने के लिए कि मैं ये कलाम मैं तुम्हें दूंगा, तुम लोगों को बताना। मूसा कुर्बानी दे रहा है। अगर खुदा उसे बुला रहा है तो मूसा की कुर्बानी देके मूसा कुर्बानी दे रहा है, किस लिए? ताकि खुदा के लोगों तक कलाम पहुंच जाए। आमीन। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि लोगों ने अपने लिए कहा कि हमें देवता बना के दे, उठ हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, जो हमारे आगे आगे चले, हमारी देवता बना दे। हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया है। वो समझे कि मूसा मर गया है, मूसा मर गया है, मूसा कोई नहीं आएगा, अब मूसा नहीं है, खुदा तो है ना। हालेलुया। इन्होंने खुदा के सारे मौजज़ात भुला दिए, थोड़ी देर के अंदर सारे मौजज़ात को इन्होंने भुला दिया। किस तरह बहरे कुलज़म में से निकले, किस तरह इनका पानी पानी रहा, इनके घरों के ऊपर कोई आफत नहीं, सब कुछ भूल गए। और कहते हैं कि हमारी देवता बना दे, हमारी देवता बना उस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया है। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों, लड़कों, लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। अपना सोना देने वास्ते तैयार ने, बछड़ा बनवाने वास्ते, अपना सोना देने वास्ते, कीमती सामान देने तैयार ने, कादे वास्ते? बछड़ा बनाने वास्ते। और यहां पर लिखा गया है उन्हें बालियां उतार कर उनको हारून के पास ले आए और उसने उनको उनके हाथ से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छेनी से ठीक गई थी। तब वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, तब वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदावन कलाम कर रहा था, शरीयत दे रहा था कि नीचे जाके मूसा बताएगा। और नीचे बनी इस्राएल ने बछड़ा बना के पूजा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही है हमारा वो देवता जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल के लाया है। और भाई मुकद्दस में लिखा गया कि ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बान गाह बनाई। उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर इथे जिंदा खुदा दे वास्ते उठन को तैयार नहीं जे। तुहाडे च भी सारे काफी लोग जे बछड़े वास्ते सवेरे उठन वास्ते तैयार रहे। इंजी ना बाजी, जिंदा खुदा के लिए उठने के लिए तैयार नहीं, ये बछड़ा बना के ओदे आगे कुर्बानी चढ़ाने वास्ते ये तैयार ने। किसी बछड़े ने वास्ते कुर्बानी करांगे। सोचो जरा, कुछ नाल चलो, वेखो किथे किथे असी अपनी जिंदगी च कोई ना कोई मसाइल बनाए ने। इधर देखो खुदाओं का बंदा बूढ़ा शख्स था, किस हिम्मत के साथ कलाम सुन रहा था। क्यों सुन रहा था? कि लोगों को बताएगा जाके ये है खुदा का कलाम तुम्हारे लिए। नाल अपने वेख दे जाओ किथे ऐसी फिट होंदे पे हैं। आगे लिखा गया है, फिर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई, सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठ कर खाया पिया, उठकर खेल कूद किया, एंजॉयमेंट शुरू हो गई। एंजॉय कर रहे होंगे कि वाह चंगा देवता बन गया। और तब अगला सीन फिर शुरू। ऊपर से खुदा था, मूसा उसके सामने था। सुने अगला गौर से। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, नीचे जा। सुने ये अल्फाज किस तड़प के साथ खुदावंद ने अपने मुंह से बयान किए होंगे। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग, अब खुदा ये नहीं बोल रहा मेरे लोग। यही तो पैगाम था मूसा के पास, जा फराउन से कह दे कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी इबादत करें। अब नीचे सिचुएशन और बदल गई। अब खुदा कहता नहीं मूसा, ये मेरे लोग नहीं है। अगर मेरे होते तो मेरी इबादत करते, मेरे कामों को याद करते, मेरी शुक्रगुजारी करते। मेरे लोग नहीं हैं। ऐ मूसा नीचे जा,
क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा। ये है खुदा बयान करा, अपने मुंह से बयान करा। उन्होंने खुदावन कह रहा है, उन्होंने ढाला हुआ बछड़ा बनाया, उसे पूजा। आज इधर खुदा है, खुदा किस तरह अपने जज्बात का बयान करा। मूसा से जा, नीचे जा, तेरे लोग जल्द बिगड़ गए हैं। उन्होंने ढाला हुआ बछड़ा बनाया है और उसकी पूजा करके खुदा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उन्होंने ढाला हुआ अपने बछड़ा बनाया और कुर्बानी चढ़ा कर ये भी कहा है कि इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। एक एक गल जो थले हो रही सी, खुदा उदा बयान कर रहा है। कब कब हम खुदाओं को निराश करते हैं। क्या मेहंदी के प्रोग्राम में खुदा हमारे से बड़ा खुश होता होगा कि वो दरबारों पे वजन वाला टोल साहब मेरे लोकां दे आके मेहंदियां च वजदा पिया। क्या खुदाउन क्या इस बात से खुश होता होगा? नो, ये वही बात हो जाती है। इबादत खुदा चाहता है, तो खुदाउन अपने खुदा की इबादत करना। इधर खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं कि मूसा को खुदावंद कहता कि जा, नीचे जा, क्योंकि उन्होंने ढाला वो बछड़ा बना लिया है। और ये भी कहते हैं कि ये है वो देवता जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर ले लाया। और 15वीं आयत, तब मूसा शहादत की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा। मूसा जिस खुशी के साथ ऊपर चढ़ा होगा, अब मूसा रोते हुए नीचे आ रहा होगा। अब तो मूसा को पता लग गया। मूसा तो कह के गया था कि यहीं पर ठहरे रहना, अपने सारे मामलात हारून के सामने लेके जाना, लेकिन हारून ने ही तो बछड़ा बना दिया, हारून ने ही तो मज़बा बना दिया। और आज ये खुदा का बंदा मूसा जब आ रहा है वापस, मैं सुबह भी बोल रहा था, पहाड़ से चढ़ना आसान, पहाड़ तो नीचे उतरना बहुत मुश्किल होता, दुश्वार होता है। लेकिन ये बंदा बूढ़ा शख्स जिसको ये भी पता लग गया कि थल्ले हालात की ना, इन्हें भी पता लग गया कि जिसके लिए मैं 40 दिन 40 रात खुदा का कलाम लेता रहा, उन्होंने इस कलाम को रद्द करके अपनी ढाला हुआ बछड़ा बनाया हुआ। में से पढ़ते हैं, वो लोहे नीचे लेके उल्टे पांव लौटा और वो लोहे इधर और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी। वो लोहे खुदा ही की बनाई हुई थी। सुने खुदा ने किस तरह बनाया होएगा, अपने मोहब्बत देना तराशिया होएगा और किस लगन के साथ उसके ऊपर लिख रहा होगा कि ये मैं अपने बंदा को दूंगा, मेरा बंदा जाके नीचे सिखाएगा। और वो दोनों तरफ से खुदाओं की हाथ की लिखी हुई थी और खुदा की ही बनाई हुई थी। जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा हुआ था और उन पे कनंदा था, लिखा नहीं था, बीच में खोदा हुआ था। खोदा हुआ कभी जाया नहीं होता, लिखा हुआ मिट जाता है, खोदा हुआ बीच में कनंदा हो जाता है। और बाइबल में लिखा है कि वो खुदा ही का लिखा हुआ उन पे कनंदा किया हुआ था। और जब यीशुआ ने लोगों की ललकार सुनी, ये है पॉइंट की बात सुने, अगर मूसा ऊपर 40 दिन 40 रात मौजूद है तो नीचे उसका खादम यीशुआ भी इंतजार कर रहा है। यीशुआ वहां से हटा नहीं है, यीशुआ वहां से गया नहीं है, यीशुआ यहां उधर से निकला नहीं है। इंतजार कर रहा होगा कि मेरा मालिक, मेरा आका, मेरा उस्ताद ऊपर लेने के लिए कलाम गया है, वो नीचे आएगा। उधर दूसरे लोगों ने क्या किया कि पता नहीं क्या उसे हो गया, पता नहीं मर गया, कितने चला गया, खरे वापस आना कि नहीं आना। से नहीं, फिर खुदा ने बोल दिया था कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था तेरे साथ भी रहूंगा, ना मैं तुझसे कभी दस्तबरदार और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। यीशुआ इंतजार कर रहा था। आमीन। यह है अच्छे 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 शागिर्द की निशानी। और हमारा उस्ताद कौन है? हमारा उस्ताद हमारा खुदावंद यीशु मसीह है।
हम उसके इंतजार में कितना उसके लिए बेताब रहते हैं, कितना उसके इंतजार में अपनी आंखें उठाए रहते हैं। लिखा है ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। हालेलुया। तो ये तक ही रहा होगा। यीशु ऊपर की तरफ निगाह रखे हुए था। आएगा मूसा नीचे, आएगा मूसा नीचे। और यीशु को क्या पता कि नीचे क्या हालात बन गए। मूसा को तो पता लग गया, खुदा ने बता दिया। और जब यीशुआ ने बाइबल मुकद्दस में जब यीशुआ ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। यीशुआ ने बिल्कुल नहीं पता की गल हो रही थी। और मूसा ने कहा ये तो आवाज ना फतहमंदों का नारा है, ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। और मूसा कहता नहीं, ये तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। आंसू तो ऊपर से भी बहा के आ रहा होगा, कितना रोया होया होएगा। 10 हुक्म लेने के लिए गया था, 10 हुक्मों की क्या नीचे से कदर की गई। और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन लोगों को अपने हाथ में से पटक दिया। किसको दे, किसको सिखाए, किसे बताए कि ये है आपके खुदा ने मुझे दिया कलाम। किसे बताए, किसे दिखाए ये है वो कलाम जिसके लिए मैं 40 दिन 40 रात ना कुछ खाया ना कुछ पिया, मैं खड़ा रह के खुदा के कलाम की इंतजार करता सुनता रहा। ये है खुदा के कलाम जिसके लिए मुझे खुदा ने बुलाया था। मूसा गजबनाक हुआ, गोया गुस्से में आ गया, परेशान हो गया और अपने हाथों से उसने उन लोगों को पटक दिया और उनको पटक दिया, उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जलाया, उसे बारीक पीस का पानी में छिड़का और उसमें से बनी इसराइल को पलवाया। पियो फिर पानी उसे बछड़े दा। अज भी जेड़े दुनियादारी दे रस्मां दे अगे अपने आप को लेके जाते उस दा सुरमा अपनी बीमारियों की सूरत, अपनी मुश्किलों की सूरत पींदे पे ने। पियो फिर उस सुरमे नू उसने बना के बछड़े को, जो सोना बीच में होगा, जिसमें चांदी होगी, सब कुछ होगा, उसी बछड़े का पीस आग में जला के पीस कर उसका सुरमा पड़ाया। फिर क्या कर रहे हैं हम? अपने कदमों पे खड़ा हो जाएंगे। सोचिए कहां कहां हम ठीक हैं और कहां ठीक नहीं है।